Good morning, friends. Welcome to Silver Bells Mansarovar Online Education. Myself Vinod Trivedi. Today we are going to discuss chapter number 2, Lost Spring. See the para. Savita, a young girl in a draping dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongue of a machine. So Savita, she is working with a machine. So her hands are used to with work with machine. So writer has noted this thing. Her hands work as like machine. I wonder if she knows that सेंसिटिविटी का मतलब होता है पवित्रता. She knows the sanctity of the bangles she helped make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. As you know, what is the value of bangle in Indian culture? किसी का अगर हस्बैंड मर जाता है तो आपने देखा होगा कि जो बैंगल्स होती है उसकी वाइफ की, तो वो तोड़ दी जाती है. सो यू कैन से बैंगल्स, it is a symbol of suhag in Indian culture. It is not only it has an importance of fashion, no, but it has cultural value also. It will down on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. Red veil, it means gungat. Her hands dyed red with henna. Henna, it means mehndi, and red bangles rolled on her wrists. She will then become a bride. आप कोई भी बहू को, नववधु को देखते हैं तो ये उनके सिंबल होते हैं. हाथ में मेहंदी लगी होती है, घूंघट होता है. ओके. सो कुछ साल पहले मतलब उसकी शादी ऐसे हुई थी. लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर who became one many years ago, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes. Actually, in this time also the bangles were on her hands but there is no shining, and there is no shining in her eyes also. मतलब कि वही बैंगल्स जो शादी के दिन थे, जो आँख में चमक थी, जो एक कुछ आशा लेके जो लड़की शादी करती है, तो कुछ साल के बाद वो सब उसमें से रहा नहीं था. सिर्फ उसके जो सिंबलाइज जो बैंगल्स थे वही रहे थे. ये लेसन में राइटर क्लियर करना चाहता है कि भाई जो चीज़ें मतलब कि सुहाग समझी जाती है, वो चीज़ बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चली जाती है. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. एक वक्त सर भर भी खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy. उसने बताया कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है एक काम में. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. एक टाइम का खाना भी उसको नसीब नहीं हुआ है. तो इतने दिनों से काम किया, तो दूसरी कोई लग्जरियस लाइफ की बात नहीं करते, पर जो बेसिक नीड जो खाने की बात होती है तो वो भी उनको नहीं मिल रही है. तो बोले कि ये काम में उन्होंने ये पाया है. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. ऑल आई हैव डन is make a house for the family to live in. Her husband says that I don't know any other work, otherwise I don't know anything more. Okay, whatever I have done in this work, only we get only partially livelihood, nothing more. मतलब कि जो काम करने से उसमें बताया कि पूरा खाना भी नहीं नसीब होता. तो दूसरी बात तो ठीक है, पर दूसरा ये काम भी नहीं जानता था, दूसरा कोई चीज़ नहीं जानता था, और एक काम में उनको मतलब गरीबी ही मिली है. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ he has achieved what many have failed in their lifetime.
he has a roof over his head. But even though that person was happy because at least he has achieved roof, okay, टूटा फूटा मकान उसके नसीब में हुआ था, तो वो भी उनको सक्सेस लग रहा है. बाकी दूसरे कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला था. नथिंग दे गॉट. द क्राई ऑफ not having money to do anything except cry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. That same condition is prevailed in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind numbing toil have killed all initiatives and the ability to dream. ओके जैसे बेटा देखा कि ये जो क्राई थी वो पूरे मतलब कि जो एरिया था वो हर घर की थी, एक घर की बात नहीं थी. और दूसरा एक वर्ड उसमें यूज हुआ है, द यंग मैन इको दी लेमेंट. लेमेंट मतलब सैडनेस. उसने बताया ऑफ देयर एल्डर्स, लिटल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, इट सिम्स इन फिरोजाबाद. ईयर्स ऑफ माइंड न्यूमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव. मतलब उनका जो उत्साह था, उनका काम करने की जो इच्छा थी, ये सारी चीज़ों को मतलब कि ख़त्म कर दिया. एंड द एबिलिटी टू ड्रीम. और ये इतना मोनोटोनस वर्क बना कि जिससे ये लोग मतलब कुछ नया सोचना, नया कुछ काम करना या कोई ड्रीम करना कि भाई सोचना कि भाई मुझे ऐसा मिलेगा, मेरी लाइफ ऐसी होगी, ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया. ये जो लॉन्ग जो प्रोसेस का काम होता था और कुछ न मिलता था, काम करने के बाद न कुछ मिलने की वजह से उन्होंने ड्रीमिंग करना ही छोड़ दिया था. नाउ नेक्स्ट राइटर, शी इज आस्किंग व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज yourselves into a cooperative. As you know, cooperative, I am giving you an example. डेयरी बिजनेस nowadays गुजरात में अगर जो डेयरी का काम काज चल रहा है, बनास डेयरी या जो बाकी की डेयरिया है वो सब, तो एक कोऑपरेटिव वे से चलता है जिसमें मतलब सब साथ में मिलके वर्क करते हैं. आपने एसएस में पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें. कोऑपरेटिव सेक्टर जिसमें एक ग्रुप होता है, ग्रुप सब साथ में मिलके काम करता है, उसके एक्सपेंस निकालते हैं और बचता है लास्ट में प्रॉफिट, उसका भी शेयरिंग होता है. और फैक्ट्रीज़ में ऐसी चीज़ें नहीं हो रही. फैक्ट्रीज में तो बहुत कम वेतन देके लेबर्स को मतलब कि काम करवाया जाता है और जो प्रॉफिट का जो हकदार होता है वो मालिक होता है सिर्फ. और यहाँ क्या है, इसीलिए राइटर ने पूछा कि आप कोऑपरेटिव वैसे काम क्यों नहीं करते. कुछ लोग 50 लोग जुड़ जाओ और 50 लोग जुड़ने के बाद यू ट्राई टू ऑर्गेनाइज समथिंग. ओके, जो काम कर रहे हैं वही काम आप आगे बढ़ाओ और मार्केट में सीधे जाओ, जिससे आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी होगी. सो व्हाट इज द आंसर वी आर गोइंग टू डिस्कस. आई आस्क ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers forefathers. So writer says asked why you are not thinking about cooperative way. You are young. Okay, you can see your fathers and also your grandfather, they all have been trapped in middlemen. middlemen मतलब कि उनसे काम करवा के जो प्रॉफिट का हकदार होते हैं वो मिडलमैन होते हैं, जो बिचौटिया बोलते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं. तो वाई आर डूइंग दिस थिंग, राइटर हैज आस्क्ड. नाउ से बेटा, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस. होल्ड अप मतलब कि खींच के ले जाना. हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बिटन एंड ड्रैग्ड टू जेल for doing something illegal. One of young men has replied to the writer, suppose if we start, then what will be happen? Okay, police will come, hold up and put into jail. आज पता है कि जो पैसे वाला है उससे पुलिस भी डरती है और जिसके पास पैसे नहीं है वो कोई भी मतलब कि थोड़ा भी बहुत छोटा मोटा काम गलत वैसे उसको पता नहीं वो भी हो गया तो भी उसको पीट देती है. हमने ये चीज़ें देखी है. ये देश की एक जो खतरनाक छवि है ये बता रही है. सो वन ऑफ हैज सेड दैट कंडीशन विल बी हैपन विद अस, सो वी कैन नॉट डेयर टू डू समथिंग
individually. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. आगे मैंने बताया था कि कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका काम निकलवाने के लिए, वोटिंग के लिए उनको थोड़े टाइम के लिए सपोर्ट किया जाता है, बाकी कोई उनके साथ होता नहीं. और ये चीज़ें यहाँ दिखती है, यू कैन सी वो ये. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. So ये जो यंग लड़का था, उसके जो पेरेंट्स भी थे, वो भी ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि अगर वो खुद ना कुछ करने जाएंगे तो पुलिस उनको परेशान करेगी. ओके. और ये जो अनइंटरेस्टेड हो गए थे, जो अफवाही का वो जो वर्ड है, उसका मतलब होता है कोई दूसरी चीज़ों को लिए सोचने के लिए, कोई ड्रीमिंग करने के लिए उनमें हिम्मत ही बची नहीं थी. नाउ नेक्स्ट, लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स. वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी. वेब ऑफ, पूरी जाल में आ गई है पॉवर्टी. बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न. दैट इज वन अनदर थिंग्स. स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न. कौन सी जाति में उनका जन्म हुआ है, आज भी डिस्क्रिमिनेशन हम देख रहे हैं. ओके. तो ये दो चीज़ें थी. दी अदर विशियस सर्कल ऑफ शाहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिस, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. शाहूकार गांव में एक पैसे वाला इंसान होता है, वो लोगों की चीज़ों को लेके पैसा लेता है, बहुत हाई इंटरेस्ट लेता है. ओके. मिडल मैन, जो उनसे काम करवा के उनकी मेहनत का पैसा मतलब कि ज़्यादा वो हड़प जाते हैं. पुलिस को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. देन द कीपर्स ऑफ लॉ. लॉ के जो कीपर्स हैं, मतलब कि जो हम जिसके लिए हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, एक जो एक जो सामान्य इंसान है, वो सोच रहा है कि अगर मुझे कोर्ट में जाके अगर कोई चीज़ मुझे इजीली हासिल हो जाएगी तो शायद हम सोचते भी नहीं हैं, कोर्ट से दूर हटते हैं. उसका रीज़न क्या है कि जो कीपर्स ऑफ लॉ है, वो भी ये देश में एक बड़ी सी मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं. वो कभी प्रेशर में काम करते, कभी पॉलिटिशियन के प्रेशर में होते हैं, और दूसरा करप्शन का एक बड़ा मैटर है. तो उसमें वो चीज़ों को ध्यान में रख के जो जस्टिस की बात होती है, तो आम इंसान जो है वो सोचने से 100 बार सोचता है कि चलो कुछ भी गया. ये लोग इतनी, मतलब हमने देखा अगर जो लोग के जो कीपर्स है अगर वो ध्यान रखते तो छोटे बच्चे छोटे मतलब कि फैक्ट्रीज में काम ना करते, जहाँ कोई सेफ्टी रूल्स नहीं है. वहाँ बच्चा मतलब कि चाइल्डहुड से स्टार्ट करता है, और जब उसकी जवानी आती है तब तक तो उसकी आइज़ है, वो आईसाइट खो दिया होता है उसने. ये जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने ये जो ट्रस्ट है वही छोड़ दिया है. उन्होंने जो लोग के जो कीपर्स है उनमें भी उनका विश्वास रहा नहीं है. उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स मतलब कि क्लास 1 क्लास 2 की जो मतलब कि पोस्ट होती है, अदरवाइज जो ऑफिसर्स होते हैं सारे, वो भी उनका काम भी ये चीज़ों से उनको पता है. सारी चीज़ जो एरिया में होते हैं वो बहुत रूबरू होते हैं चीज़ों से, फिर भी दे आर अनएबल टू गेट हेल्प फ्रॉम देम ऑल्सो. पॉलिटिशियंस, मैंने आपको पहले भी बताया, पॉलिटिशियन का काम होता है जब वोटिंग के लिए वो काम करते हैं, फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं 5 सालों के लिए. तो ये जो ट्रैप में आए तो उनके लिए हु आर द रिस्पॉन्सिबल्स. सो साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. सो ये लोगों ने उन पे एक लगेज जैसा डाल दिया, बैगेज डाल दिए छोटे बच्चों पे, वो उसमें से निकल ना पाए. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, एंड नाउ दे यूज्ड टू विद दिस थिंग, दैट इज़ देयर डेस्टिनी. उनके लिए वही काम है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. बाकी सबको मिलके राइटर बता रहा है कि मुझे मतलब कि निराशा ही लगी, पर जब मैंने मुकेश को देखा तो मुझे लगा कि कुछ नया है उसमें, मतलब कि मैं खुश हो गई. ओके. आई एम चीयर्ड अप. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, बट द garage is a long way
from his home. He learned regarding garage and whatever motor mechanical things. But the garage is far away from where he is living. I will walk, he insists. He said that I will walk. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. Writer says, asked, "Do you want to? You because we have seen. Okay, I want to drive a car. There is one line. So after seeing the we can say Mukesh, writer says asked that would you like to fly a plane also, because he has a lots of spirit. He is suddenly silent. No, he says staring at the ground. ये बताता है कि आज वो मतलब कि गाड़ी चलाने का भी ड्रीम कर रहा है, सोच रहा है शायद होगा कि नहीं। प्लेन की बात तो बहुत दूर की बात है। उसने ग्राउंड पे देखा, वहाँ जहाँ है वहाँ ये सिंबलाइज होता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. वो सोच रहा था अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो भी वो मतलब वहाँ गाड़ी भी कोई लेके वहाँ का एरिया का घुमा नहीं होगा, वो भी बड़ी बात है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और कुछ जो है प्लेन भी वहाँ से मतलब कि फ्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। Okay student, now what you have to do, you have to write down the answers of the question in your fair notebook, okay, and related grammar, okay, I will tell you what you have to do in the next video, okay, well when we will discuss about your grammar, okay, according to your paper style also. Thank you, have a nice day.